Warm welcome to our friends from the media who are here with us for this press conference. The aim of this conference is to underline the impact of newly launched Agnipath scheme, a transformational reform which was announced by the Ministry of Defence on 14 June 22 and is beneficial not only for the armed forces but also for the youth of the country as well as our civil society at large. The purpose of the scheme is to make our armed forces more younger, fitter and tech savvy in the backdrop of emerging character of warfare, thus creating a requirement of technically qualified youth to meet the challenges of future battlefield. The Agnipath scheme will increase the technological threshold of the soldiers by carrying out recruitment from ITIs, that is Industrial Training Institutes, and other technical establishments like National Skill Development Center, and also reduce the average age of profile of the Indian Armed Forces from 32 to 26 to 24 years by 2030. The scheme was announced with dual purpose of providing employment for large base of youth and requirement of armed forces. However, it was perceived negatively by some sections across the country. Herein, we would like to highlight that Honorable Raksha Mantri has conveyed that other ministries and state governments have expressed willingness to accord priority in absorbing Agniveers for government jobs after completion of 4 years. It is emphasized that it was expressly mentioned by the Honorable Raksha Mantri that announcement for some would come in 2 to 3 days. However, even for such announcement and the full scope of scheme could be understood, there were protests by youth due to their misplaced fear. In line with the statement of Raksha Mantri on 18 June 22, several additional announcements have been made by central government and some state governments to address the concern of youths. To provide options for second employment for Agniveers after 4 years. Some of them are age relaxation from 21 to 23 years for the first year to provide fair opportunity for youth affected by last 2 years gap due to COVID. Lifetime recognition as Agniveers. Easy loan after 4 years to establish own business. Reservation of 10% jobs in CAPF and Assam Rifles for 3 years age relaxation beyond prescribed age limit, that is 5 years relaxation for the first batch. 10% reservation in Indian Coast Guard, Defence Civilian Posts and 16 Defence PSUs. Ministry of Ports, Shipping and Waterways announced 6 service avenues for smooth transition of Agniveers. PSUs under Housing and Petroleum Ministry are working on hiring Agniveers after their 4 years of service. A special 3 years skilled based bachelor degree program for serving defense personnel by Ministry of Education. Uttar Pradesh, priority to Agniveers in recruitment of police and related services. Haryana, preference in job and other works to youth who complete their service. Assam, preference in recruitment to the state police. Karnataka, induction of Agniveers into state police after completion of 4 years service. The scheme has been deliberately thought through over past 2 years, which was also been highlighted by Chief of Naval Staff during the interview to the ANI, that is media channel. It is the single biggest human resource management transformation in Indian military. Protests are happening due to misinformation and misunderstanding. Like any other transformational reform, there are related challenges. To face the challenges, we have to embrace the change with the
whole of the nation approach. In our opinion, the youth must accept the change and maintain peace and tranquility because this scheme will provide the workforce for economic transformation of our nation, which is aspiring $5 trillion economy. We are now open for the questions and answers. ओके, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ। सबसे पहले जितने भी यहाँ मीडिया के कर्मी हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य नई शुरू की गई अग्निपथ योजना से होने वाले लाभों को रेखांकित करना है। एक परिवर्तनकारी सुधार जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 जून 22 को घोषित किया गया और न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए फायदेमंद है। इस योजना का उद्देश्य हमारे सशस्त्र बलों को युद्ध से उभरते चरित्र की पृष्ठभूमि से अधिक युवा, अधिक फिट और तकनीक की समझ रखने वाले बनाना है, जिसके भविष्य में युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य युवाओं की आवश्यकता पैदा है। अग्निपथ योजना ITI और अन्य तकनीकी प्रतिष्ठानों से भर्ती करके सैनिकों की तकनीकी सीमा को बढ़ाएगी और भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु का प्रोफाइल 32 साल से घट करके 26 से 24 साल का हो जाएगा 2030 तक। इस योजना की घोषणा युवाओं के बड़े आधार और सशस्त्र बलों की आवश्यकता के लिए रोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्य से की गई थी। हालांकि इसे देश भर में कुछ वर्गों द्वारा नकारात्मक रूप से माना गया है। यहाँ हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि 14 जून 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान माननीय रक्षा मंत्री ने बताया था कि अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने 4 वर्ष नौकरी पूरा होने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए अग्निवीर को अवशोषित करने में प्राथमिकता देने की इच्छा व्यक्त की है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि इसकी जो है पूरा डिटेल 2 से 3 दिनों में होगी, लेकिन इस तरह की घोषणा योजना के पूर्ण दायरे के शामिल से पहले ही कुछ वर्ग के युवाओं ने अपने गलत डर के कारण विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 18 जून 22 को रक्षा मंत्री के बयान के अनुरूप केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा युवाओं की चिंता को दूर करने के लिए 4 साल के बाद अग्निवीरों के लिए दूसरे रोजगार के विकल्प प्रदान करने के लिए कई अतिरिक्त घोषणाएं की गई हैं। उनमें कुछ इस प्रकार है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों के अंतराल से प्रभावित युवाओं को उचित अवसर प्रदान करने के लिए पहले वर्ष के लिए 21 से 23 वर्ष की आयु में छूट, अग्निवीर के रूप में आजीवन मान्यता, खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 4 साल बाद आसान ऋण, CAPF और असम राइफल की नौकरियों में 10% की आरक्षण और आयु में छूट, 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा तटरक्षक बल एवं नौकरियों के लिए प्राथमिकता। पिछले 2 वर्षों में इस योजना पर विचार किया गया है, जिसे ANI की दिए गए साक्षात्कार के दौरान नौसेना प्रमुख ने भी उजागर किया था। यह भारतीय सेना की
सेना में सबसे बड़े मानव संसाधन प्रबंधन परिवर्तन है। गलत सूचना और गलतफहमी के कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी भी अन्य परिवर्तनकारी सुधार की तरह संबंधित चुनौतियां हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें पूरे राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन को अपनाना होगा। हमारी राय में युवाओं को परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह योजना हमारे राष्ट्र के लिए आर्थिक परिवर्तन के लिए कार्यबल प्रदान करेगी, जो कि 5 ट्रिलियन की व्यवस्था के लिए इच्छुक है। अब हम प्रश्न और उत्तर के लिए खुले हैं। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे लोग जो सेना बहाली बनाना चाह रहे हैं, जो सड़कों पर भी मौजूद हैं, कैसे और समझाया जा सकता है कि योजना के बेनिफिट को, क्योंकि लगातार सेना के बड़े अधिकारी दिल्ली से लेकर के हर एक स्टेट को प्रेस कर रही है, लेकिन विरोध जो है वो थम नहीं रहा है। क्या लगता है कि क्यों आखिर इनसे विरोध हो रहा है और आप लोगों की तरफ से आगे क्या होगा, क्योंकि सेना में बड़ी लंबे समय तक रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है जिस तरीक़ा से बाकी भी रिपोर्ट आ रहे हैं, बहुत तरह के असामाजिक तत्व सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पूरे ओवरऑल पर्सपेक्ट में देखें तो इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहला सरकार, भारतीय सरकार, दूसरा है सेना और तीसरा जो हमारे युवा जो सेना में जाने के इच्छुक हैं। भारतीय सरकार को क्या चाहिए? उसको एक ऐसी सेना चाहिए जिस पर विश्वास करके देश की सुरक्षा निश्चित की जा सके, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। और आज तक, आज़ादी के बाद तक जितने भी कार्य सेना को सौंपे गए हैं उसको बहुत ही अहम तरीके से निभाया और पूरे जनता को, पूरे पॉपुलेशन को, हर नागरिक को विश्वास है कि जो काम सेना को दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। सेना का काम क्या है? सेना का जो अपना स्ट्रक्चर, अपनी जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक उसको डिटेल्स है, उसमें समय के साथ बदलाव करते रहना। जैसे आज का रिक्वायरमेंट है, हम ज़्यादा टेक्निकल, क्योंकि जो आज से 50 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में या 31 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में जिस तरह की लड़ाइयाँ होती थी, उस समय जितना पैदल सेना का काम होता था, हैंड टू हैंड फाइट होता था, आज हमारा जो टेक्निकल आर्म के ऊपर, हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा निर्भरता हो गई है। तो ऐसे में है, ऐसे जवानों की, ऐसी सेना की ज़रूरत है कि जो उस नए टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को आत्मसात कर सके। तीसरा जो स्टेक होल्डर है, युवा वर्ग, उसके हाथ से क्यों सेना में जाना चाहता है? इसके सबसे बड़ी एक इज्जत की नौकरी है, जॉब की सिक्योरिटी है, और उसको एक पता है कि खुदा न खास्ता अगर हमारा कोई हादसा हो गया तो हमारे देखने वाले सेना है, देश है, समाज है, सब लोग बहुत इज्जत से होता है। ये उसको हाथ से फिसलता नज़र आ रहा है। ये जो एस्पिरेशन इतना 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करके वो जाने के और जो सक्सेस होते थे, उनको लगता है कि ऐसा अब नहीं होगा। यही एक गलत धारणा है। जो भी हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट अभी अग्निपथ में मिला किया, उसमें 25% तो उसमें रहेंगे, उनका तो रहेगा ही। बाकी को भी हम दूसरे तरीके से उनको एक सही तरीके से एब्जॉर्व करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये है हालात। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत आइडिया, गलत बहकावा है कि सब कुछ तुम्हारा खत्म होगा, कोई जो है 4 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा, ये जो बहकावे वाली बात है, उसके चलते ये बवाल हो रहा है। ये जो उसका मुख्य कारण एक और है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, उसमें बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं किए हुए, वो अपना भविष्य दुनिया विस्तार में दें। नो, इसमें तो इसीलिए एक खास इसको दूर करने के लिए ही सरकार ने जो 21 से आयु को जो बढ़ाया है, 21 से 23 वर्ष का आयु इसीलिए किया है ताकि ऐसे लोगों को भी
जो उम्र में चढ़ रहे थे उनको भी ये मौका मिले, और ये एक तरीका है जिससे कि वो लोग इसमें, क्योंकि नए अभी रूल्स लागू हो गए हैं तो इसलिए पुराने लागू नहीं हो पाएंगे। इस वजह से वो जो एज की जो सहूलियत दी गई है, 2 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है, उससे जो पुराने कैंडिडेट्स थे वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। झारखंड में कितनी बाहर में होंगे? झारखंड में कितनी बाहर? 40,000 तो पूरे देश में है। झारखंड के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो कितनी बाहर? इस पर जो आपने अगर स्कीम को देखा होगा, समझा होगा, जो भी जानकारी अभी ओपन सोर्स में आई है कि पैन इंडिया मेरिट के ऊपर होगा। किसी पहले जो होता था, जो बहाली होती थी RMP पे होती थी, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन अभी इसको पैन इंडिया मेरिट के ऊपर से, जिसके अभी जो पैमाने पूरे अभी वर्कआउट हो रहे हैं कि किस तरह से ये ओवरऑल मेरिट को बनाया जाएगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होंगी, और जैसे पहले देखा गया था कि केवल कुछ एक डिस्ट्रिक्ट से, पीलर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे, ज्यादा संख्या में आते थे, और पैन इंडिया मेरिट में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रह जाएंगी नंबर्स की। अगर वो ओपन मेरिट में आता है तो उस व्यक्ति को का चुनाव होना स्वाभाविक। क्या जॉब सिक्योरिटी में बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी कह रहे हैं कि इसकी वजह से युवा घबरा रहे हैं, करियर सुरक्षित नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या कंफर्म है, जैसे पेंशन की योजना पेंशन का लाभ नहीं है, क्या कुछ ऐसा चेंज होने वाला है, या इसको लेकर के क्या पेंशन वगैरह भी नहीं है? एक सर्टेन अमाउंट के बाद 4 साल बाद किया जाएगा इसी व्यवस्था अवश्य, बट एक जनरल जो प्रोसेस है सबसे कम डेटा रिटायरमेंट वो भी नहीं। मेन मुद्दा समझने में है ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, इसमें किस चीज को लिवरेज किया जा रहा है। जो हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है, जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा है कि आप कैसी सेना पसंद करेंगे, या नाम ही रिपोर्ट आता है, जो कि एक कारगिल कमेटी की रिपोर्ट में था, लेकिन किसी वजह से उस पर तवज्जो नहीं दे पाए, तो अभी इस चीज को सुधारा जाता है। यंग आर्मी का तीसरी चीज है, आप जो सेना में ले रहे हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से एक डबल फिल्टर लगा। पहले आप चयन कर रहे हैं सारे रिक्रूट्स का, उसके बाद 4 साल के बाद आप फिर 25% उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट। तो इस प्रक्रिया से एक तो यूथ पॉपुलेशन आपके पास 4 साल वाली जो है पॉपुलेशन है, और दूसरा इनमें से जो बेस्ट निकल रहे हैं वो जो हमारे नए रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि लड़ाई के मैदान में अब ना केवल नॉर्मल हथियार चलाना रह गया है, लेकिन नए नए यंत्रों, नए नए तकनीक जो आ रही है, उसको अडेप्ट करने में भी ये सुविधाजनक है। दूसरा जो ये 25% है, उनका तो पेंशन और वो सब नौकरी वगैरह सुरक्षित है। इसके अलावा जो पैरेलल एंट्री जो कर रही है सरकार ने, जिसकी घोषणा की है, तकरीबन 30 से 35%, 40% जो पॉपुलेशन है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। पुलिस हो गई, PSCs हो गई, थल सेना, मर्चेंट नेवी हो गई। तो ये सब जो सरकार ने घोषणाएं की है, उसकी मदद से ये लोग उनमें भी जा पाएंगे, जहाँ की उन्हें सुरक्षित जो पेंशन नहीं हो, लेकिन NPS वाला जो सिस्टम है जो लागू है, उसमें वे शामिल हो पाएंगे। ये जो आप रोजगार का विकल्प दे रहे हैं, उसको पहले क्यों नहीं इंक्लूड किया जाए? किस चीज में? रोजगार का जो विकल्प है उसको पहले क्यों नहीं इंक्लूड किया? नहीं, देखिए, विकल्प है उसको पहले क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, और अभी किया गया तो क्यों किया? विकल्प सारे, लेकिन विकल्प सारे, आप ये बताइए, संविधान जब बना था तो संशोधन उसी समय लागू हो गए थे। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति और परिस्थिति जैसे जैसे उभर के आई है, उसके हिसाब से संशोधन किया जाता है। ये नहीं कि स्कीम नहीं था। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने ये प्रेस ब्रीफ दी थी, तो उसमें सारे चीजों पे तवज्जो नहीं, मतलब सारे एक स्कीम को ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया था। आज भी जैसे कैसे आर्मी में रिक्रूटमेंट होगी, उसकी अभी जो इंस्ट्रक्शंस है वो अभी निकल ही रही है। तो इस वजह से, और अगले आने वाले 90 दिनों में आप देखोगे कि ये सब चीज साफ हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, और जैसे जैसे ये हो रहा है वैसे वैसे अनाउंस किए जा रहे हैं। स्टेट्स अपना जैसे जैसे मन बना रहे हैं, जैसे जैसे उनके पास जो भी वैकेंसी वगैरह पैटर्न अवेलेबल है, उसके हिसाब से स्टेट्स की, जैसे आपने सुना होगा भैया साहब ने बताया कि कई स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया है पुलिस में भी रिजर्वेशन। इतना ही नहीं, जैसे कि इस प्रोग्राम का जो स्कीम का जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा
तो आर्मी का फंक्शनिंग में देखेंगे उसमें अगर कोई डिफिकल्टी आएगी, जैसे आपका रैंक स्ट्रक्चर है, पूरा एक जो हमारा पिरामिड एक स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं फंक्शनिंग, तो हो सकता है इसमें भी मॉडिफिकेशन होगा। 4 साल की जगह हो सकता है 6 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो। आपको मालूम होना चाहिए कि 1977 तक कलर सर्विस सिर्फ 7 साल का ही होता था। जो कलर सर्विस था उसके बाद 8 साल रिजर्व में रहते थे जो फौजी थे। मतलब उस कलर सर्विस वाले सिर्फ 7 ईयर्स वालों से नहीं हमने 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, और परफॉर्मेंस आप जानते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन हमारा रूटीन का एक हिस्सा है, ताकि हम समय के मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें उसी तरीके से बदलाव करते रहें, तभी तो हम अप टू डेट रहेंगे और जो आने वाले चैलेंजेस हैं उस समय का उसको हम फेस कर सकेंगे। कई देशों में ये जो सबसे खूबसूरत चीज है जो हमारे इस सिस्टम की, ये ऐच्छिक है, स्वेच्छा से वॉलंटरी सर्विस है। जो कई देशों में सब्सक्रिप्शन जो मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको जबरदस्ती 2 साल के लिए सर्विस रेंडर करना है। एक उम्र के बाद आपने 2 साल के लिए सर्विस करने से मेडिकली अनफिट समझना है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखें। दूसरा 4 साल का इसलिए रखा है कि इसमें जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से हमने टेलर मेड अपने इंडियन एनवायरमेंट के लिए बनाया है, जिसमें कि समझते हैं कि उतनी ट्रेनिंग देने से और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो फिट आते हैं उनके लिए 4 साल का समय उचित है। दूसरा, इनको जो पैरेलल एब्जॉर्प्शन होना है दूसरे सर्विसेज में, उस अवधि को अगर ज्यादा लंबा कर देंगे तो इनकी उम्र और ज्यादा भाग जाएगी, जिसमें कि वो पुलिस और बाकी उस फोर्सेस के लिए कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इन सब वजह की वजह से 4 साल को रखता है। अगर किसी वजह से लगता है कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। जैसे